Um, the person who first chased the dreams amongst us, we were all similar age. But hoarding में जब पहली बार मैं आया था, I used to do advertising, and I saw a poster of Mission Kashmir, and I saw 3 names: music composer, Shankar, Loy, Ehsan, and I said, "Oh my God!" Because I knew them from advertising days. मैंने कहा इनको picture मिल गई यार, ये कमाल है. And I'm so happy today, after so many years, I have Shankar Mahadevan here, who will actually be part of the celebration of Zero Se Restart. Shankar, please come on stage. And I have to recall the first moment when I was looking for a music composer for Mission Kashmir. I wanted new composers and old composers. And I had a song, and that time the HMV company was talking to me, and I said, I want to meet composers. So that song was given to 4 composers. And they were all known, some of them are very well known, and all of them composed it very nicely. But one composition stood in my, when I heard it, and I still remember it, it went, Dhua, 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 hi dhua, dharam, dum, dum, dum. And I said, who are these people? Who is this man? And that was Shankar Mahadevan. That was our first meeting. As usual, so happy to be with you, Vinod, Shantanu. Today is a special day because Zero Se Restart actually, हम लोगों का तो जीरो से रीस्टार्ट ने हम लोग का जीरो से स्टार्ट ही हुआ था विनोद चोपड़ा के साथ actually. So I remember as he was saying Mission Kashmir, we got a call from Vinod Chopra. We were so excited, and all the songs became popular. All the songs of Mission Kashmir, thanks to him and his energy in the studio, and of course Samir ji, who wrote such. We had some wonderful sessions over there, and that musical passion, that interest in creating those songs, I can never forget, Vinod. So, you know, it's beautiful that you have involved me in this Zero Se Restart. I thank you and your entire team, especially Shantanu too, for thinking about me being part of this, a small part of this music, but I think we very don't important. think of you, Shankar. We never forget you. Yeah, We cannot forget you, man. You know, just Absolutely. to Shankar बोल नहीं रहा, because अपने मुझे कैसे बोलेगा? But Vinod's brief to me was यार end का line ना has to be a voice of God. So we have the voice of God. You are too kind. Okay, तो हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं सर और आपके फिल्म में जाते हैं. चलिए सर. फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे, रिंद पोशमाल गिंदने द्राइलो लो. Come on. रिंद पोशमाल गिंदने द्राइलो लो, सरगम के मीठे मीठे सुर बोलो, सरगम के मीठे मीठे सुर खोलो, आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारो मेरे संग संग बोलो, गाओ पोशमाल गिंदने द्राइलो लो. इसी पिक्चर का गाना
काफी पॉपुलर। ए बुमरो शाम रंग बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से तुम, बुमरो शाम रंग बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से तुम, भोरे हो शाम भोरे खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात, काजल का रंग लाए नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए रास्ते संवारने को, काजल का रंग लाए नजरें से उतारने को, बागों से फूल लाए रास्ते संवारने को, आओ मेहंदी की छाओं में गीत सुनाए, बुमरो झूमे नाचे साज गाए जश्न मनाए, बुमरो शाम रंग बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से तुम। What memories, yaar. You know, another zero se restart or start was this kid who was doing this song, Hrithik Roshan. This was his first film. That was the first time Hrithik was cast outside of his father's film, the first one. So the way he used, remember he couldn't do one step. And he wanted a mirror, so I got him a mirror. I broke a mirror from a makeup room. Because he didn't think, he kept telling कि मुझे mirror होता ना तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, तो mirror नहीं था, तो I broke a mirror, brought it, and that's how he got this step right. Absolutely. I remember that day when we were sitting on your, that room upstairs, and he said, let me introduce you to the new hero of my film, a new kid. Just check him out. His name is Hrithik Roshan, and then Hrithik Roshan walked in. That was the first day. Anyway, enjoy your rest of the morning. Thank you, Vinod. Thank you. Such a pleasure. We will have Shankar back on stage very soon, but till that happens, the next zero se restart moment in my life was when I met Shreya Ghoshal. And though she was much younger to me, but so much I've learned from her, and it's amazing. Her restart zero moment beginning also started with this legend. So Shreya Ghoshal, can we have you on stage? A big round of applause. This is a very interesting story. I just remembered as I met her. I was making a song. There was a singer singing. There was a music composer there. But there were some issues. And I remembered Sanjay Bansali telling me that he had recorded a song with a wonderful singer, wonderful girl, he said, a few days back. And because of that problem, I immediately called Sanjay. I said, where is that girl you told me? Where does she live? I was in Warsaw. I said, send her now. She came and she went on mic and she sang the first line and I fell in love with her. It was unbelievable, which now you know. Har baar ye gaati hai, we all fall in love with her. Oh my God. Like how he said, but श्रेया, अभी हमको थोड़ा हिंदी में बात करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, वहाँ से रिक्वेस्ट आया। हाँ, आप बंगाली है ना, इसलिए टेस्ट है ये। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो सारा ये ख्वाब सा था, ड्रीम ऐसा ही लग रहा था, surreal, because when I met him first and the first impression of वो किसी person का पहला impression ही सबसे important होता है ना, so I felt there was so much passion, energy, and a childlike energy, which you see right now also. That was so amazing to see from a person who has got a body of work of what order. And मैं बहुत young थी, naive थी, लेकिन इतना प्रोत्साहन डे वन में, वो पहली लाइन से मैं कांच के पीछे देख रही हूँ कि सर ऐसे उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, ही सो हैप्पी. और वो मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आशीर्वाद होता है. सो आई थिंक ही हैज़ बीन दैट फॉर नॉट जस्ट मी, फॉर मेनी मेनी आर्टिस्ट, सिंगर्स, कंपोजर्स, एक्टर्स, एंड वी लव यू सर, वी लव यू सो मच. तो हम जब ये प्लान कर रहे थे कि ये हमको क्या करना चाहिए, तो विनोद का आइडिया था कि यार तुम लोग
तो कॉलेज कैंटीन में जैसे करते थे, इतना तामझाम नहीं थी, गिटार लेके तो करते थे, हाँ तुम लोग का बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बट ऐसे ही तो शुरुआत हुआ था. एंड आई थिंक आई जस्ट लविंग द फैक्ट कि हम आज विनोद यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम खड़े, सबके स्टोरीज आ रहे हैं. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड एंड दिस इज हाउ आई हर्ड श्रेया व्हेन आई कंपोज्ड दिस सॉन्ग. Say you're mine. Say you're mine. अच्छा बताओ. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया. लब तो मैं खोलूं ना लपटों पर आंखों से सब कह दिया. पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना. जिया डोले, होले होले, क्यों ये डोले जानू ना. पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना. हाँ जिया डोले, होले होले, क्यों ये डोले जानू ना. Na re na re na re na re na 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 re ne ra na na re na 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 re. एक नदी से मैंने पूछा, इठला के चल दी कहाँ. दूर तेरे पी का घर है, बल खा के चल दी कहाँ. थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ. सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह Everybody. पिया. पियो बोले, क्या ये बोले जिया डोले, क्यों ये डोले जानू ना. Everyone come on. पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना. जिया डोले, होले होले, क्यों ये डोले जानू ना. Thank you so much. Thank you. इतने सारे गाने हैं, लेकिन उसमें से ये गाना तो हमेशा इतने साल हो गए अब भी सर. व्हेन आई गो ऑन द स्टेज, इट इज़ अ फैन रिक्वेस्ट. अगर वो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये गाना मैंने अपने कॉन्सर्ट में नहीं गाया है. इट हैज़ सच लव from so many years and it will continue to. That's the kind of music that you have produced with Shantanu Da. Amazing, amazing songs. Thank you so much for having me here. मजा आ गया. तू जाने के पहले 4 लाइन और एक विनोद को कोई फिल्म की थी, इतने बड़े बड़े तेरे गाने हैं. एक गाना हाँ. Chan Chan. That was the song when I first actually met him. Can you believe how I felt when this little girl went on stage and that big star singer had sung it already? Please remember this. That she had sung, and of course, you know, I don't want to say it, my wife will kill me what happens in films. But, you know, I got upset. I said, no. So I got this girl, she comes on that mic and she goes, sing that first 2 lines. Chan Chan. Chan 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 Chan. मन गाए क्यों, सन सन हवा सन सन सन, लहराए क्यों. Just when she did that chan chan, no, I died. I said, "Ye, who is this girl?" Huh? Yeah. The way I say, "Oh, died" is a very decent way, but
Yeah, my expression said that, but my words were not the same. But talking I about was words, so shocked. Shankar, she looked so sweet. She came from some गाड़ी में कैसे ऑटो में. I still don't remember. मैं Young तो girl एकदम walking in. सफेद सलवार कमीज मुझे याद भी है, एकदम सफेद ऐसे वाइट चुन्नी, एकदम गुड गर्ल टाइप को के आई थी. And she comes and I am saying, okay, no time, go on the mic straight. So she goes on the mic and my composer was kind of skeptical कि ये विनोद कर क्या रहा है. The moment she sang, chan chan, oh, छनन छन छन छन, मन गाए क्यों. Moment she did that, मर गया मैं. But you know the kind of contribution that जो मैंने इतने सालों में बहुत कुछ सीखा है, how to sing really on mic from the greats like you, Shantanu da. I learned for the first time what is expression. मतलब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो इतना आइडिया नहीं था. मुझे पता था कि सुर में गाना चाहिए, लय ताल होना चाहिए. What is expression is what this man taught me. पीयू बोले का जो वो पीयू बोले, वो हंसी भी उन्होंने सिखाई हुई है. प्रदीप da was there and this was so cinematic and that made so much of difference for the actress Vidya Balanji to enact, and later I understood कि कितना value है इन सब चीज़ों का. But talking about words, there was one more song which I want to sing two lines. बिल्कुल. जो it's not in capacity of the director, but he was in the capacity of a lyricist. Yes. तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन. Yeah. और भी है बहुत, क्या करूं. I wrote the बोलो lyrics ना, of this. No, that is इसका not bad. Please. इसका ही तो है. बोलो ना, हाँ बोलो ना. बोलो भी बोलो ना. मतलब I have insane number of songs with this man, so I don't know where to start and where to stop. मैं निकलती हूँ. Thank you so मेरी much. restart वापस हो ही नहीं रही. एक तो मैं बता दे रहा हूँ शंकर, शान, अश्या, विनोद चोपड़ा का जब लैंडमार्क आएगा एक, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, we have to do a concert celebrating his film songs. We have to do it. Thank you. We have to do this. I know that Okay. landmark Yes. is coming soon, so correct. And I must tell her that her singing, because that was also a zero moment for Vidya Balan. She had never acted before. Correct. That song, the way she sung, helped Vidya act. Absolutely. That's the important thing. She had. You held all of us together in that moment, so thank you so much. Thank you, Shreya. Thank you so much. And now, another young kid who was so small, उसका अगर गाना सुनोगे, मेरे को कल उसने Spotify में भेजा कि ये मैंने गाया था, मेरे को ये कहाँ है ये शान? तो एक बच्चा सा आवाज. And what an incredible zero entry moment in the Shan's life, कि when he was a kid, he sang for Vidya Vinod Chopra in Parinda. Can you believe this? That's amazing. A big round of applause for Shan Mukherjee. Guys, He let me was tell this big. इतना सा था ये लड़का तब. इतना ही था ना, इतना सा था. 17 हाँ. No, I'm saying कि बहुत रेयर है कि ऐसे ही हम लोग सब ऐसे बैठ के अड्डा मार के गाना कर रहे हैं, एक ही गिटार कुछ नहीं है. I'm just loving this vibe, है ना? See, the important thing is that this is probably the first music launch when there are not many people playing and everything. I wanted it to be like how we are, how we make music. And to go back to Shan, इतना सा था ये. I still remember. इतना सा ही था ना कि इतना था. जब हम मिले थे तो इतना ही था. I was इतना 12. और ये ऐसा माइक नीचे करके, ऐसा नीचे करके, R.D. Burman of course was there, and I still remember the first one. कि
दोस्ती है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी. इतना सा आप तू गा. अब मैं तो गा. नहीं रियली एक्चुअली मेरी सागरिका वाज आल्सो देयर. और मुझे जो एक्चुअल ओरिजिनल गाना है उसमें लाइंस मेरे थे ही नहीं, क्योंकि वो आवाज़ मेरी ना इधर की थी ना उधर की थी. लेकिन जब फिल्म की रिलीज का वक्त आया तो उनको लगा कि एक उस तरह की ही आवाज़ चाहिए. तो जिन्होंने कहा ना एडोलसेंट वॉइस चाहिए. आई थिंक जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर, तो उसमें एक लाइन था, वो सब पत्थर उठा के कहता है कि ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी. फिर उसके बाद कहना था कि ताकत से नहीं, ताकत नहीं, प्यार से, सादगी से. तो इस तरह का वो, लेकिन उस एक लाइन के लिए आई हैव क्रेडिट ऑन दैट सॉन्ग. तो एक तरह से let's hear जीरो से स्टार्ट वहीं से हुआ था. 1 2 3 4. कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी. कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी. तो वो तो एक स्टार्ट हुआ ही था और उसमें मेरा वही की लाइन था, Correct. ताकत से डरेगा. उसके बाद से मुझे भी समझ में आया कि ताकत से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो प्यार से, सादगी से. तो सबक मुझे इस टाइम मुझे जब आनंद स्टूडियो, देवानंद साहब के स्टूडियो में, और वो एक बड़ा सा स्क्रीन था और वहाँ एक बच्चा ऐसा जू बीच में पत्थर उठाकर खड़ा है और वहाँ वो गाना एक लाइन मुझे गाना था. लेकिन later on इस छोटे से लड़के को जिसने 2-3 लाइन नहीं गाया था, later on he went to sing a song which was a defining moment in our lives because that song won a lot of national awards. मैं पहला वाला लाइन कर रहा हूँ because इसका एकमात्र गाना जिसमें मेरा भी क्रेडिट है as a co-singer with Shan. I just did 4 lines. Yeah, we've also shared an award. We share an award for that song, and बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो. हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो. Everybody. यार हमारा था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो. कहाँ गया उसे ढूंढो. दोस्तों हम लोग जीरो से रीस्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एक सर्कल तो यहाँ हुआ कि जहाँ हम लोग साथ में क्रिकेट खेले थे. मैं एक बात कहना और फिर- चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ. जी. मैं अभी श्रेया ने पूछा 71 हो गए आप? नहीं, मैंने कहा 72. कहती 72. 72. तो ये गाना सुन के मैंने अभी तक अपना विल नहीं लिखा है, लेकिन मैं विल अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जब मैं जाऊंगा ना गुरु, ये गाना जरूर गाना. ये तो सबके ये लिए याद fix रखना. है. मेरे लिए जरूर गाना. ये गाना मैं किसी इस के गाने गाना के गा ऊपर सकता है. बैठ के सारी लाइव जिया हूँ साला. हाँ, याद रखना, भूलना मत. अभी ये बात मैंने पब्लिक में बोल दी, इसको गाना ही पड़ेगा. तुम लोग गाना यार. I don't know. वही चल रहा है कि ये तो जाने की बात कर रहा है. ये तो कि पहले क्या हो जाए. who knows, This but- song has been an inspiration for me. I have to tell you guys. The way you composed, the way you sang, this song makes me feel this is how we should lead our lives. Thank you. बिल्कुल 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 बिल्कुल. This is how we should lead our lives.
नहीं, इस गाने के साथ मेरा एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी भी जुड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि दैट सेम ईयर 2010 आई वाज डिटेक्टिव विद नॉड्यूल्स और आई वाज नॉट सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और देन आई स्पोक जानू इट्स सब लो में है, तेरा हो जाएगा, टेंशन नहीं है. तो आई वाज ओनली मेंट टू सिंग द लोअर पार्ट एंड उस पर भी डर था क्योंकि वो खराश ऐसा था कि वो कहीं भी आ रहा था. आज भी फिर से वापस आ गया, बट एनीवे, बट वो लो पार्ट हो गया. फिर बोले कि अच्छा देख वो वाला ट्राई करे, तो फिर वो भी कर लिया. अचानक से it was like almost unbelievable for me क्योंकि it was high note. Then I realized that song is composed in such a way that the mid notes where I was having trouble with my throat was not there in the song. या तो low है या फिर high है. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और ambitious हो गया. फिर मैं शांतना को बोला आला भी कर लूं. अरे भाई कुछ तो मेरे लिए छोड़ सकते, सब खींच रहा है. But A big round of applause for song Shan. brought it Thank you back so much. and, Thank you, Shan. Shan, you now stay on the stage. Shankar and Shreya, come on stage. And now the master of ceremony becomes Vinod Chopra, because now we're going to talk about the song and launch the song, which is so close to our heart, Zero Se Restart. First, let me just tell you what the song is about. It's just a few lines. I'll narrate the poem to you. It says, चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं. तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है. जो झूठ के पीछे भागे तू, हर मोड़ पे झूठ को सहना है. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. अभी मैंने इसीलिए तेरे को बोला वो बात, क्यों मैं डरता नहीं हूं मरने से. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. चल खुशियों से मिलते हैं, चल यार वापस जीरो पे चलते हैं. जो नेक्स्ट लाइन है, विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ही सेज, चल सच की डगर चलते हैं, चल अपने बचपन से मिलते हैं. चल सच की डगर चलते हैं, भोलेपन से फिर मिलते हैं. मिलजुल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे. और जो बचा खुचा है टिफिन में, मिलजुल कर सारे खा लेंगे. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार वापस जीरो पे चलते हैं. तो ये जो आज हुआ है, तो वी हैव ऑल एक्चुअली गॉन बैक टू आवर जीरोज, एंड इट्स रियली वेरी इमोशनल फॉर मी दैट दिस सॉन्ग is now going to be sung by them. But before I go to release the song, I want to introduce a very interesting zero guy, the kid who actually with me directed and edited this film. Kid called Just Cover Kohli. He should be somewhere. Oh, aata nahi hai. This is the kid who's just come straight from editing room. He has edited, directed and narrated the film. And there's very interesting anecdote he just told me कि कितनी फुटेज से कितनी फिल्म बनी है, ये मैं चाहता हूँ ये आप लोगों को बताएं. So this was not a Zero Se Restart was not a planned film. उसका कोई बनाने का हमारा इंटेंशन था नहीं. इसका पहले मैं पूरा इंट्रोडक्शन कर दूं. ये जीरो इसका D2D है. ये ड्रोन ऑपरेटर था साला, इसको कुछ नहीं आता था. ड्रोन चलाता था शिकारा में, आता तो था मगर था ड्रोन ऑपरेटर. फिर इसने ड्रोन ऑपरेटर बन के वो थोड़ा एडिट किया, क्या था वो, शिकारा डायरीज. तो बहुत अच्छा एडिट किया. तो इस पिक्चर में मेरे साथ था लिखने एडिट के लिए. तो पहले असिस्टेंट एडिटर था, मैं एडिट कर रहा था. तो अच्छा काम करने लगा शंकर, तो मैं बोला यार असिस्टेंट नहीं, तेरे को एसोसिएट एडिटर बना दूंगा. खुश हो गया, तो एसोसिएट एडिटर हो गया. फिर चलता गया, अच्छा काम कर रहा था. तो मैंने कहा यार तेरे को को एडिटर बनाऊंगा मैं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा था. हो गया एडिटर, को एडिटर बन गया. फिर चलते चलते एक स्टेज आई, आई कुडंट रेजिस्ट. मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में नहीं किया है, मैं एडिटिंग क्रेडिट तेरे से शेयर करूंगा. एडिटेड बाय विनोद चोपड़ा एंड जस्ट कवर कोहली. तो भाई साहब खुश हो गए. और जब तक पिक्चर खत्म हुई, क्रेडिट ये है कि एडिटेड बाय जस्ट कवर कोहली, विनोद चोपड़ा. मतलब मैं कंसल्टेंट एडिटर हो गया हूँ. और कंसल्टेंट, ये पहली बार मेरी फिल्म में टाइटल होगा एडिटेड एंड डायरेक्टेड बाय जस्ट कवर कोहली, कंसल्टिंग एडिटर एंड डायरेक्टर विद विनोद चोपड़ा. क्या बात है. तो इस बच्चे ने मेरे को कंसल्टिंग बनाया. नाउ यू स्पीक. Sir, I also have a zero moment with you.
कोविड का टाइम था एंड वी वर ऑल लॉस्ट, आई वाज आल्सो लॉस्ट एंड थोड़ा डिप्रेशन वाले स्टेट में था. और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर मतलब मैं घर जा सकता हूँ क्या 4-5 महीने के लिए. आई जस्ट वांट टू गो होम, आई वांट टू बी विद फैमिली, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड. एंड ही सेड या प्लीज गो टुमारो. आई सेड नहीं सर कल नहीं, मतलब आई विल गो यू नो नेक्स्ट मंथ, आई विल रैप अप सम वर्क. बोलते नहीं कल जा. आई सेड नहीं सर कल नहीं सर, मतलब आई विल गो सून. तो बोलते ठीक है, अच्छा तो फिर कल नहीं जा रहा तो एक काम कर ये पढ़. एंड देयर वाज अ स्क्रिप्ट दैट सर शेयर्ड विद मी. उस टाइम पे एक रेडी बाउंड स्क्रिप्ट थी कॉल्ड 12th फेल. एंड आई रेड दैट एंड ही आस्क्ड मी कि क्या लगता है. मैंने बोला सर इट्स नाइस, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बेटर हो सकता है सर, ये थोड़ा मेरे को लगा ऐसा है. तो इसे ठीक है चल, कैसे करेगा ठीक. मैंने बोला सर सोचना पड़ेगा सर, रात को सोचता हूँ. बोलता है चल सुबह बता. तो आई स्पेंड द नाइट थिंकिंग सर एंड आई थॉट आई कम अप विद सम ग्रेट आइडियाज. तो सुबह मैं आया सर के पास, मैंने सर को अपने ग्रेट आइडियाज सुनाए और सर बोलते हैं बिल्कुल बकवास. बिल्कुल बकवास. बट इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू सजेस्टेड व्हिच इज अ हॉरिबल आइडिया, व्हाट इफ वी डू दिस, does it like slightly fix your problem? I said sir slightly it fixes my problem. And the next thing you know, 10 months later we have broken that script down to its fundamentals and rewritten like an entirely new version, 179 versions of that like that. And from there to just I'm standing here today, it's quite a journey sir, it's quite a journey. How wonderful, yeah. How wonderful. I love being consultant now. Did you end up going home at all? No, I haven't gone home ever since. For many years. he तभी has से not आज तक घर गया ही नहीं वो. एक मौका मिला था कल जा. जब चला जाना चाहिए, अभी तक नहीं है. जब भी विनोद does not want anybody to go, वो उनको स्क्रिप्ट पकड़ लेते कि ये पढ़. Okay, And, yeah. we'll now Yeah, please. present the song. इसको करने के पहले एक इंसान को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ. वो है स्वानंद किरकिरे, who wrote this song, and he's a very integral part of our team. Like विनोद, मैं, स्वानंद, we have been, अगर मेरे 22 साल हो गए इनके साथ तो स्वानंद का भी हुआ था. साथ में ही हमने शुरू किया था. तो ये हम गाना गा रहे हैं. एक स्वानंद का एक जीरो मोमेंट हाँ. बोलना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जब पहला गाना बना, दिस यू गाइस डोंट नो, रात हमारी. वो गाना था रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई ये अकेली है. उसके बाद हाँ, संझा के बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज. यू कैन हम दिस सॉन्ग. थोड़ा वर्ड्स मेरे साथ नहीं. Check. मैं बोलता रहा. मैं जब तक ये प्रॉम्प्ट करने मुझे ये का गाना करते, बहुत मैं कहानी सुना देता हूँ. उसने ये नहीं ये बहुत जरूरी है. वो लिख रहा था, ये हम सब के लिए जरूरी. तो स्वानंद ने ये लिखी लाइनें, तो कुछ लाइनें मैंने चेंज वेंज की, फिर उसने ये गाया, फिर वो कुछ लाइन को सिंप्लीफाई करने लगा. जो संझा की बातें, तो गुनगुना. एक मिनट. संझा के बाती भी रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है. संझा की बातें भी कोई बुझा दे यार, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें यार. अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है. क्या बात. नाउ अच्छा, ये गाना वो हमारे टेरेस पे अब स्वानंद बैठ के ऐठा वर्ड चेंज कर रहा है, सांझ वर्ड चेंज कर रहा है, सांझ का कुछ शाम कर रहा है. मैंने कहा क्या कर रहा है. कहता है सर ये किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं कर रहा हूँ. फिर मैं बोल ही देता हूँ, फिल्मों में भी मैंने बहुत गाली दी. मैंने कहा भोसड़ी गए, तू मेरे टेरेस पे बैठ के इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर रहा है. तू प्रोड्यूसर है कि मैं प्रोड्यूसर हूं. तो ऐसा देखता है. मैं बोला प्रोड्यूसर कौन है बहन, पैसा किसका वेस्ट होगा, तेरा के मेरा. एग्जैक्टली. अच्छा, अब स्वानंद रोने लगा.
मुझे लगा यार मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैंने शांतनु को बोला यार उसको बोल मैं गाली दे देता हूँ, ये सीरियस नहीं है, ऐसे ही बोल दिया उसको, चुप करा। जब ये गया वो रोते रोते मुझे क्या कहता है, और आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कहता है सर जब से शहर में आया हूँ जहां जाता हूँ लोग कहते हैं ये बिकेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं, इसको सिंपल करो, इसको लोगों को बचाओ। आप पहले आदमी हैं सर जो कह रहे हैं कि मत करो, जो मन में है वो करो। एंड ही वाज वीपिंग फॉर दैट। That is, I remember that. And I will remind you, एक और चीज़ आपको रिमाइंड करता हूँ कि क्यों he was that day emotional, कि सर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस alternate path में you are successful. क्योंकि अगर successful नहीं होते, तो it cannot become an example. ये भी उसने बोला, करेक्ट। क्योंकि देखो आज क्या मैं यहाँ सक्सेसफुल खड़ा हूँ ना यार, देखो अभी मैं यही बात कुर्ता पहन के, फटा हुआ पजामा पहन के, जू बीच पे आपको बोलता यार ऑनेस्ट रहो, बुराई के रास्ते पे मत चलो, गंदी फिल्में मत बनाओ यार, तो तुम तो सोचते पागल है, इसको बेवड़े को दारू दे छोड़ दो। नहीं, बहुत जरूरी है यार। सी वो तो फिर उसको रिजेक्ट ही करेंगे बेचारा यार, ये गलत रास्ते पे चल गया, सच्चाई के रास्ते पे चला, बर्बाद हो गया। तो मेरी बात सुनने के लिए जरूरी है कि आप देखें कि हम सक्सेसफुल हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए देखो। तो हम सक्सेसफुल लोग आपको बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, सही रास्ते पे चलो, और तो मतलब सही हो गया ना। सॉरी अभी ये थोड़ा डाइवर्जन हो गया, बट इट वाज इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं क्विकली गाना कर देता हूँ बिफोर इट गेट्स डाइवर्टेड मोर। ये गाना शुरू हो रहा है विद स्वानंद्स वॉइस, वो जब भी है नहीं, बट जस्ट टू कीप हिज प्रेजेंस। बट बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये सब लाइव गा रहे हैं। आजकल पता नहीं चलता क्या +1 है, -1 है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, बट दीज आर द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ अ कंट्री। हाउ कैन वी डू अ +1 विद देम? अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं। चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं, चल जीरो से चलते हैं, अरे यार खुद से फिर मिलते हैं। तू हंस के जी यारों के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है, जो झूठ के पीछे भागे तू हर मोड़ पे झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है, किस बात से इतना डरना है। चल खुशियों से मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं। चलो राही खुद से मिलते हैं। चल सच की डगर चलते हैं, चल अपने बचपन से मिलते हैं, चल सच की डगर चलते हैं, भोलेपन से फिर मिलते हैं। दिल खोल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे, जो बचा कुचा है टिफिन में मिलजुल के सारे खा लेंगे, खा लेंगे। जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है, किस बात से इतना डरना है। चल खुशियों से मिलते हैं। चलो वापस जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं। चलो राही खुद से
क्या सबको गाना अच्छा लगा? So guys, अब सुनने में मार्केटिंग लगेगा, पर थोड़ा सा मार्केटिंग भी है. लव, शेयर, ओके, एंड लिसन टू दिस सॉन्ग. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऐसे शब्द या ऐसे थॉट आजकल होते नहीं यार. अब बोल रहे जीरो से रीस्टार्ट. यार हम सबके जिंदगी में जरा जीरो से रीस्टार्ट मोमेंट है. जस्ट अपने लिए सुनो, उतना ही काफी हम ले रहे. थैंक यू सो मच. लास्ट वर्ड मैं बोलूंगा. अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो भाड़ में जाने दो. Check. Guys, please be seated because now we're going to watch the video on the big screen. So please be seated, everyone. Yeah, are you guys excited? Okay, thank you. Please be seated. We'll just show you all the video and then we'll interact with the artist as well. So please be seated. Thank you, everyone. So firstly, ये energy आपको कैसी लग रही है? You turned this theater into a musical concert. You got the best of the singers here. आज पहली बार हम सबको मजा आया है with even Shantanu sir doing so well. Sir, कैसा लगा ये atmosphere आपको? बहुत बुरा लगा. अच्छा ही लगा होगा यार, इसका क्या जवाब दूं? अरे बाप रे, अरे बाद में करो. अरे रहने दो, पकड़ के रखो. सवाल क्या है? सवाल कैसा लगा तुमसे मिलके, अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा. कौन से? तुमसे This is R.D. Burman यार, R.D. Burman in परिंदा. तो Okay, so इतना I'll pick अच्छा up the लगा कि first- हमने गाना ही गा दिया. आज सारे सवालों के जवाब गानों में ही होंगे. So we've handpicked a few questions. तो मैं पूछ लूँगा. So this is for all the singers. Can you elaborate what influenced you for this song's composition? Composition तो ये कॉम्पोजिशन तो उन्होंने बनाया. आप बता दीजिए. Influence is the story of Zero se Restart. Influence is this man. Influence is 12th Fail, the film that I saw. And influence is our lives. I'll be honest with you, I miss spending time with Shan, Shreya, Shankar when we were starting off. अभी हम सब बहुत busy हो गए हैं. हमको कभी कभी सिर्फ एयरपोर्ट्स में मिलते हैं, स्टेज में मिलते हैं. Very rarely we meet. It's a beautiful morning today. I think ये इंस्पिरेशन इस धुन का इसी से कि यार काश ऐसा दिन वापस होता कि हम जब बैठ के अड्डा मारते थे वैसा हो जाए. यार सच्ची यार, मतलब आज का जो एनर्जी था ना, बहुत दिल खुश हो गया. मजा आ गया. और बहुत साल बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर इस तरह से हम लोग एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे सब साथ में माइक के पीछे. जो पहले लोग सुनते हैं सिर्फ कि ऐसा हुआ करता था एक वक्त में. सो इट वाज नाइस दैट वो भी एक जीरो से रीस्टार्ट हुआ. सब मिलकर गा रहे थे. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. Absolutely. Next question is for Vidu sir. How did you ensure that the song feels personal to the audience while staying true to the film's story? See, first and foremost, I never think that song should feel personal to the audience. I feel it should feel personal to me. If it's good for me, then it's good for everyone. I have never made a film or a song thinking, audience will love it. Whose audience? I'm also audience, no. One audience तो मैं हूं ना यार. सबसे important तो हम ही audience है. हमको ही अच्छा नहीं लगा तो फायदा क्या, फिर भाड़ में जाओ. तो मैं अपने ही सोच के लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ. We'll take last 2 questions only. Again, this is for Vidu sir. What do you hope people should take away from this song? You know, actually, I'm telling you, I'm just hoping that they'll have fun. They should just enjoy themselves and
if they really have fun, they will take something home. If they get bored in my movie, nothing will happen. If they get bored in the song, nothing will happen. I think आज हमने देख लिया कि सबने कितना enjoy किया है. So give it up everyone for yourselves and for the entire team. We'll take one last final one. Okay, this is for the singers. While recording, did it make you think of your own zero moment starting over? Absolutely. मतलब what we narrated here was exactly what we हम लोगों ने जब record किया तो विदु सर भी थे और हमारा एक जब हम record कर रहे थे अपना जो moment था मेरा मिशन कश्मीर moment. I'm sure that शान तुमने भी जो परिंदा का moment है मेरा तो ये भी zero moment हो गया. Feels like another new restart. It's been so long since I've been part of big songs. So लेकिन इस आदमी को मैं मतलब 25 साल पहले से जानता हूँ जब मिशन कश्मीर हमने साथ में किया था तभी से लेके आज तक एक इतना इंच भी बदला नहीं हुआ ऐसा का वैसा है physically भी ऐसे ही है. Amazing. Thank you very much guys. Thank you. Give it up for the entire team. Thank you so much. Thank you everyone. Guys, zero से restart in cinemas. Photo. I'll take the mics. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Zero Se Restart will be in cinemas on 13 December. Do watch it, and any videos that you all have taken, you all can push it up on your Instagram stories, tag T-Series Official, Vidhu Vinod Chopra Films, use hashtag Zero Se Restart, and we'll see you. Thank you so much.